Niloy. Yeah. Sir is there. Sir, hello. Yes. Yes. Good morning, sir. Good morning. Yeah. Very good morning, sir. सर द थिंग इज दैट वो डेस्कटॉप आपको सर शेयर करेंगे एक्चुअली जो क्वेश्चन आंसर है सर तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे सर लाने में दिक्कत हो रहा है सर तो डू यू हैव दिस क्वेश्चन आंसर विद यू सर No, that is you will have to put them on the poll. वो poll पे लगाना है आपको. पोल में लगाना है सर अच्छा वो I think Niloy has taken care. Niloy is doing that. Yeah I am only ठीक है Sorry, I'm able to see you because screen पे डाल रखा है ये. ठीक है वो क्वेश्चंस फिर पोल में नहीं आ पाएंगे if that way it is not done. You will have to अभी ये डिसेबल किया हुआ है आपका unless ठीक है that's not okay. You let me know whenever we need to start. Right sir. Sir, you can do one thing sir. I just message you within 5 minutes sir. Yes. I just message you sir. I just message you within 5 minutes. Yes, Niloy, what to do with this message? Pramod? Yes. Yeah, Pramod, सर जैसे बोल रहे कि वो शेयर हो पाएगा क्या वो क्वेश्चन आंसर जो सर बोले थे अभी सर जस्ट फ्यू मिनट बैक बोल इसमें एक चीज हो सकता है कि आई कैन शेयर इट वाया डॉक फाइल जो सर का है एक एक स्टेप करके स्क्रीन शेयर करके आई कैन शेयर दैट अभी वो ऑप्शंस नहीं है बिकॉज अब ये वर्जन में वो जूम में ऑप्शन नहीं है पोल क्रिएट करने का okay so like if you have PowerPoint then I can make you as a host so you can you make me a co-host no yeah make me a co-host and it will be done okay Pramod then make sir as a co-host correct sir but मैंने कुछ बोला था कि आप क्वेश्चंस अगर डाल देते ना वो पोल में तो अच्छा रहता ठीक है नहीं है तो भी कोई बात नहीं नेवर माइंड Okay. Abhi, you have disabled the screen sharing from my end. You'll have to make me a co-host. Yeah, I'm making you. Yeah. Just a minute. Let me complete because you are going live streaming on the Facebook and YouTube. Let me configure that and I'll make you. Okay. तार से तो मनोमन भाजी हो तू खाली करके थोई दोनु
Santosh ji, Anilu ji, kindly mute yourself. Kindly mute yourself. Yes, sir. I have make you a host. Okay. Now we can start. We are already live on YouTube and Facebook. Namaste, good morning. Good morning, everyone. Sunday का सुबह सुबह. The person you are calling. Yes, sir. Good morning, sir. Hello, hello. Yeah, the internet looked it was unstable. Is it okay now? Yes, sir. It's okay. It's okay, sir. So, very good morning to everyone. Siliguri, and Siliguri is a place. North Bengal is a place where, like, my father was born, my grandfather was also born, and although I was not born in North Bengal, so, and also my in-laws also are from Siliguri, so very much connected with this part of the world. And the other thing which I would like to mention, आप लोगों से गुजारिश है कि क्या expectations हैं हम लोग अगले जो 40-50 मिनट एक साथ गुजारेंगे. What is the expectations? आप लोगों को एक बहुत सुंदर सा फ्लायर निलॉय ने बना के जरूर दिया है. And but what is that expectations from a Sunday morning about this particular thing, या जो भी कोर्स, जो भी सेशन हम लोग करने वाले हैं, if you all can write, अगर आप लोग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भले ही हम लोग आधा घंटा या 1 घंटा जितना भी समय देते हैं, यह इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उतने समय में थोड़ा सा एंगेज रहें, थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व कर लें. आई थिंक हमें वैल्यू ज्यादा मिलेगी. मैं कहता हूँ कि पार्टिसिपेशन इज इक्वल्स टू वैल्यू. तो हम लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और पार्टिसिपेशन अगर कम रहेगा तो प्रॉब्ली yes, chat box is open for everyone. You can chat box, you can unmute yourself and also answer. I think that is also available for all of us. So हम लोग भले ही थोड़ी ही देर मिले, but I think थोड़ा सा engage करें, हम एक दूसरे से सीखें. That is more important. And I suppose that this is a business networking platform. Also, Lions Club members are also there. So the idea is again, सारे लोग अगर एक दूसरे के संग शेयर करेंगे तो हम लोग एक दूसरे से सीख पाएंगे. और मैं तो एक केवल माध्यम बनूंगा आप सभी के बीच में, आप लोगों की जो भी अंडरस्टैंडिंग है शेयरिंग को, उसे कनेक्ट करने के लिए. तो ओके, तो कुछ लोगों ने लिखा है कि वैल्यूएबल गाइडलाइंस. ओके, गाइडलाइंस के लिए आज हम लोग संडे को मिल रहे हैं. ओके, वैसे भी मंडे टू संडे इतने सारे गाइडलाइंस गवर्नमेंट के,
डिपार्टमेंट्स के बहुत सारी गाइडलाइंस रहती है, घर में, घर के बाहर। ओके सुनील जी, एनीवन एल्स, और कोई? व्हाट अदर एक्सपेक्टेशन इज देयर टुडे? Yes, Mulata, we will be talking about finance and well-being, financial well-being या wealth management की बात करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ी सी आज बात करेंगे पौराणिक काल से रिलेटेड है। हम सब ने अगर यस एसेट एलोकेशन ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम ठीक है, उसके लिए निलॉय जैसे व्यक्ति आप लोगों के साथ है। और एक चीज, हम सब ने बचपन में कुछ कहानियां पढ़ी होगी, चंदा मामा वगैरह वगैरह, और विक्रम बेताल की कहानियां कितने लोगों ने पढ़ी है या सुनी है? विक्रम बेताल, We all. ऑलमोस्ट ऑल, यस। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने विक्रम बेताल की कहानियां नहीं पढ़ी है। विक्रम बेताल की कहानियों में पजल्स होते थे, तो मैंने ऐसा अभी निर्देश दिया था, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे जो कि मैं चाहता था कि पोल के थ्रू वो शेयर किया जाए, नहीं तो मैं अपना जूम आईडी भी दे सकता था, पर समहाउ वो ऐड नहीं हुए हैं। देयर आर सम पीपल वेटिंग इन द वेटिंग रूम, इफ यू कैन एक्चुअली, डू आई नीड टू एडमिट देम ऑल? आपने एक्चुअली लगता है मुझे होस्ट बना दिया है, but host or the co-host need to see that there are some people waiting in the Krishna ji, Pratap ji, they all are waiting. So मैं ऐसा करता हूँ, किसी एक को co-host बना देना चाहिए, that will be good. So Niloy, I am सर आप सिर्फ host यस यस सर आप आशीष सरिया को को-होस्ट बना दीजिए। सर, आशीष सरिया को बना दीजिए सर। ज्वाइन कर बेटा। सर नीला ही है सर। सर आप आशीष सरिया को बना दीजिए सर को-होस्ट। आशीष एमनी सरिया ज्वाइन कर नाउ कैसे एक সন্ধ্যাবেলা হবে তো? এক্ষুনি আছে, শুধু এমনি জয়েন করে বসে যান। there is no option of co-host, so either I can make a host or अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में मैनेज करूंगा। इसमें सर यू स्टार्ट वी विल डू इट। আর ওয়াইসে আমাদের চলছে, আর ওয়াইসে तो आइडिया ये था, জলন বিয়া গৌরব আর মনোজ শর্মা। ফ্রিতে করছে নাকি এটা? অবশ্যই ভালো আছে। हेलो তো इसमें है তো, এর মধ্যে আছে তো। সবকিছু একটু হ্যাঙ্গের মতন হয়ে গেছে। इसको कर ही दिया ना। आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज सुन रही है फ्रेंड्स? यस सर यू आर ऑडिबल। अच्छा, आई थिंक समथिंग इज गेटिंग हैंग्ड ओवर हियर। So weather condition is not also good. It's overcast. So I think bit may hamper to network also. Yes, sir. You continue. I'll take care of all the stuff. Yes, sir. Okay, right, sir. ठीक है. Okay, sir. निलय दा सर का हैंग हो गया था सर, रीएंटर कर रहा है अभी, रीएंटर आई थिंक सो। सुनो ना निलय दा, हाँ once take my call, okay?
नमस्कार, मैंने फोन से कनेक्ट किया है, सो लेट्स कंटिन्यू। तब तक मैं देखता हूँ कि अगर उससे भी हो जाएगा तो विल ट्राई एंड डू दैट। Am I audible, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so I think there is a disturbance and we are really extremely sorry for that. So हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कुछ आज शेयर करेंगे पुरानी कहानियां जो हम लोगों ने शायद विक्रम बेताल के समय में सुनी थी, तो और उससे हमें फाइनेंशियल लेसन्स किस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो द आइडिया इज हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर शायद हम लोगों को ये मालूम है, कुछ लोगों को शायद नहीं, कि वो सोने की चिड़िया की जो उपाधि है, सोने की चिड़िया जो हमारे देश को कहा जाता था, वो कहा जाता था विक्रमादित्य के समय में, क्योंकि विक्रमादित्य ने उस समय टेक्सटाइल्स और बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्यात शुरू किया था। He started exporting them to the nations which was beyond our country's boundary. और उसका परिणाम ये होता था कि हमारे देश में सोना आता था, gold used to come and we used to export lot of things. India was at the top. The GDP अगर पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो the contribution of GDP was almost 50 to 60% in the whole world. That was what India was. और ये जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत, that was actually started because of that. So the idea is अगर प्रोस्पेरिटी की बात करनी हो और अगर हमें समझना है कि फाइनेंस में कैसे सक्सेस मिले या हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें और ज्यादा हमें कैसे तरक्की मिले, आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू शेयर एक्चुअली, जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। So is this making sense? So are we all interested to know a little bit about that, little bit one or two stories, so that no हम लोग उस स्टोरीज के संग कुछ ना कुछ रिलेट कर सके, कोरिलेट कर सकें। लेकिन वो ओके स्टोरीज बोलने से पहले मैं कुछ एक दो चीजें आपके संग शेयर करूंगा और उसके बाद में आप लोगों के संग वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। लाइक पहली चीज है टॉकिंग अबाउट मनी। ओके, when we are talking about money and then we will see what is the minimum requirement. हम सब लोग चाहते हैं हमारे जीवन में हम रुपयों को आकर्षित करें। We attract lot of money in our life. और ये कोई गलत बात नहीं है और मैं ये कहूंगा कि बहुत ग्रीडी होने वाली बात भी नहीं है। रुपयों को अपनी ओर आकर्षित करना एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर अच्छे लोगों के पास, जैसा कि निलॉय ने मुझे बताया या आप लोग जो करते हैं, जो कार्य आप लोग करते हैं या फिर इस तरह की संस्थाओं में होता है, सो इट इज गुड। अगर रुपया अगर अच्छे लोगों के पास है तो वो अच्छा यूज होगा। अब अगर समझ लीजिए कुछ रुपया है, समझ लीजिए 1 करोड़ रुपया कहीं पड़ा है और 2 व्यक्ति हैं, आप लोग किसे चाहेंगे कि ये रुपया मिले? पहला है ओसामा बिन लादेन, ओके, और दूसरा है बिल गेट्स। सबको मालूम है बिल गेट्स के पास बहुत रुपया है, पर फिर भी आप किसके पास चाहेंगे कि वो रुपया जाए? बिल गेट्स। यस, बिल गेट्स। सबको मालूम है वो तो इतना धनवान है, इतना व्यक्ति है, बट फिर भी एक नॉर्मल टेंडेंसी भी देखिए साधारण हम लोगों सब लोगों की, कि हम सब चाहेंगे बिल गेट्स के पास जाए और नहीं जाए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे अगर रुपए हैं और अगर उसको यूज करने वाला एक अच्छा व्यक्ति है तो उसका उपयोग अच्छा होता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ईश्वर भी कहते हैं ना, संपन्नता उन्हें प्रदान करते हैं जो उन रुपयों का यूज ज्यादा अच्छे से करते हैं। तो हम कहानियों में जरूर आएंगे और उसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ एक प्रसंग। और वो प्रसंग ये है, मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना सबको? और रादर थोड़ी ज्यादा है या कम, व्हाटएवर? नहीं सर, इट्स ओके। परफेक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो मेरा और आपका दोनों का आज एक संग सम्मिलित होना व्यर्थ हो जाएगा। तो एक हम लोगों ने देखा होगा एक तस्वीर जिसके अंदर में विष्णु भगवान लेटे हुए रहते हैं। ओके, मैं कोई माइथोलॉजिकल क्लास नहीं करा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। विष्णु जी लेटे हुए रहते हैं और विष्णु जी के पैर कोई दबा रहा होता है। ओके, और विष्णु जी मजे से मुस्कुरा रहे हैं और वो चारों तरफ एक क्षीर सागर है, बड़े नाग हैं, क्रैब हैं, जानवर हैं बहुत सारे, और एक ऐसी जगह है जहां पे थोड़ी सी वो एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर लगे कि भैया ये इतने बड़ी बड़ी मछलियां, क्रैब, टर्टल्स,
और इतने नाग अगर हो तो व्यक्ति भयभीत हो जाए, पर विष्णु जी आराम से लेटे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और उनके जो पैरों को जो दबा रही हैं वो है लक्ष्मी जी। ऐसा कहीं ना कहीं पिक्चर या सीरियल में देखा है, यस और नो? यस यस। अब सिंबॉलिकली लक्ष्मी जी क्या हैं? लक्ष्मी जी भगवान है, माता जी है। हाँ, क्या है सिंबॉलिकली? वो तो भगवान है, सिंबल क्या है उनका? गोल्ड। अलग अलग भगवान की अलग अलग धन की देवी। पैसा सो सिंबॉलिकली ये जो हमारी कथाएं हैं, और आप गीता से देख लीजिए, पुराण में देख लीजिए, इवन कुरान में देख लीजिए, बाइबल में देख लीजिए, हर ग्रंथ जो है उन सब में कहानियां हैं, और ये सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि बहुत सारे जो टेक्स्ट थे वो शायद समझ में ना आए लोगों को, इसीलिए ये कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे, सो दैट हम उन चीजों को समझें और उन चीजों पे अमल करें और अपने जीवन को व्यतीत करें। अब इस कहानी और इस सिंबॉलिक मीनिंग का क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि सिंबॉलिकली विष्णु जैसे व्यक्तित्व के पास लक्ष्मी जी का निवास होता है। आज की डेट में लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से बिल गेट्स, उसके पास वेल्थ है, लक्ष्मी जी है, ओके, फिनोमिनल वेल्थ है। और ऐसा क्यों है ये अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल देता हूं मैं, भगवान इंद्र का। लॉर्ड इंद्र, हम सब जानते हैं लॉर्ड इंद्र कौन है। लॉर्ड इंद्र हैं सारे के सारे देवों के राजा, मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो फायर डिपार्टमेंट, एयर डिपार्टमेंट, जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स उनको रिपोर्ट करते हैं। ओके, सो देवलोक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लॉर्ड इंद्र। लॉर्ड इंद्र के पास सबसे पावरफुल व्हीकल है। ओके, पावरफुल व्हीकल मतलब एरावत। ओके, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोले तो व्हीकल है, लेकिन उस समय उसे हाथी कहते थे। और उनके पास सबसे पावरफुल एम्यूनेशंस हैं। एम्यूनेशन मतलब अस्त्र शस्त्र। उनके पास वज्रास्त्र है जो कि बहुत ही पावरफुल था, और रादर आज की डेट में भी जो लोग बहुत संपन्न हैं उनके पास पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत नॉलेज होता है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उनके पास नॉलेज भी बहुत होगा, और उनके पास एंटरटेनमेंट का भी भरपूर साधन है। उर्वशी, रंभा, मेनका जैसे एंटरटेनर्स भी हैं उनके पास, मतलब हर तरीके से वो संपन्न है। फिर भी आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि भगवान इंद्र हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और हमेशा चिंतन में रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगते रहता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असुर आएंगे और उनके राज को अटैक करेंगे और सब कुछ ले जाएंगे। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो विष्णु भगवान है आराम से लेटे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रिलैक्स्ड हैं, फिर भी सिंबॉलिकली लक्ष्मी जी उनके पास है। मतलब सिंबॉलिकली पूरे विश्व का धन, संपत्ति, संपदा उन्हीं के पास है। और इंद्र भगवान जो कि इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने पावरफुल, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, मेनका है, रंभा है, उर्वशी है, सभी है उनके पास, पर फिर भी वो चिंतित रहते हैं और वो लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। रादर वो वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं और टेंशन में है, फिर भी लक्ष्मी उनके पास नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है? सारे के सारा वेल्थ विष्णु के पास क्यों है और इंद्र के पास क्यों नहीं? आप लोग अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं, और चाहें तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पार्टिसिपेट करना होगा हमें, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज इक्वल्स टू वैल्यू। अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और ये कोई टेस्ट नहीं है, ये हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे के संग, सो दैट हम लोग एक दूसरे के संग कुछ ऐसे विचारों को शेयर कर सकें जो शायद हमें हमारे बिजनेस में या हम जिस तरीके से काम करते हैं उसमें हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके और हम लोग बेटर वे में काम कर सकें। बोलिए। बोलिए राजकुमार लुनिया जी, आप तो पीछे में नाकोड़ा जी, बाबा रामदेव को लगा रखे हैं। All of you, anyone, anyways, it's not about yes, अनिल जी, सिद्धार्थ जैन, आप वॉक करते करते भी बोल सकते हैं। आदित्य, आप तो फोटो में दिख रहे हैं। सर आपका क्वेश्चन ये था कि विष्णु भगवान को ये सब कुछ क्यों है, यही तो? यस, विष्णु भगवान के पास
इसलिए सब कुछ है। एक तो वो पालनहारी है, जो मतलब संसार को चलाते हैं। संसार को चलाने के लिए तो धन तो उन्हीं को चाहिए ना, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से। अच्छा, ओके, तो सारा धन उन्हीं को चाहिए, तो किसको नहीं चाहिए बताइए? आपके अगर ऑफिस में आपका पियोन है उसको भी चाहिए, आपकी जो आया है उनको भी चाहिए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी चाहिए, सबको चाहिए, पर फिर भी समान रूप से तो नहीं मिलता है सबको। यही प्रश्न है मेरा, ऐसा क्यों है? उनको क्यों मिल रहा है? ऐसी क्या खास बात है उनमें? वो तो उसमें कोई बहुत दिखने में भी शाहरुख खान या ऐश्वर्या राय जैसे नहीं थे। उनसे तो ज्यादा कहा जाता स्मार्ट है वो। अच्छा, उनसे ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, तो वही बात है, क्वेश्चन ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट लाइक दैट? सी, हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहते हैं कि वो ऐसे गुण क्या है जो अगर हम लोग अपने अंदर में भी इनकलकेट करें और प्रयास करें कि वो हमारे जीवन में हमारे साथ रहे, तो हम लोग भी धन को उसी प्रकार आकर्षित कर सकें। क्योंकि ऐसा है ना कि हम जैसे होते हैं वैसे ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम अपने जीवन में अपने स्पाउस को ले लीजिए, बच्चों को ले लीजिए, पड़ोसी को ले लीजिए, बॉस को ले लीजिए, अपने ऑफिस के जो स्टाफ है उनको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप। हम जीवन में किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही निरर्थक रूप से आकर्षित नहीं करते हैं। हम जैसे हैं वैसी ही चीजों को, वैसी परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या हैं। ओके, सो दैट्स अगेन कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पे वही चीज है कि हम लोग ये समझें कि वो विष्णु कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विष्णु चरित्र क्या है। तो वो अगर हमारे जीवन में रहेगा तो ऑटोमेटिकली धन और संपदा हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती रहेगी, और हमें कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी आने वाले समय में। नहीं तो क्या है ना, वो इंद्र की तरह इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ज्ञान है, सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें वो भय लगा रहेगा। केवल ज्ञान से भय नहीं रहता है। तो यही प्रश्न है। बाकी सब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगले 1 मिनट के लिए। वी कैन डू दैट, प्लीज आंसर। इसमें कोई राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं है। और नंबर 1, ये कोई एग्जाम नहीं है। हम लोग संडे के दिन सुबह में डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्कशन और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सर मुझे लगता है ये सब पावर ब्रह्मा विष्णु महेश में बंटा हुआ है, और शिव भगवान है मतलब सब चीज का अंत करने के लिए। और मान लीजिए ब्रह्मा जी जो है सबको मतलब विद्या देने में, तो बचा अपना विष्णु भगवान। तो जो बचा है उसको दे दो सब कुछ। यस, आपने कनेक्ट बहुत अच्छा किया, नो डाउट। क्या नाम है? सिद्धार्थ, आपने बहुत अच्छा कनेक्ट किया। यस, आपने ठीक कहा। देयर आर 3 एनर्जीज, 3 शक्तियां होती है। पहली शक्ति है ब्रह्मा शक्ति, जिसे हम लोग क्रिएशन की शक्ति कहते हैं। हर वो चीज जो क्रिएट करी जाती है, वो एक व्यक्ति में ये तीनों शक्तियां विद्यमान हैं। ओके, हर व्यक्ति में, वो भले ही राजकुमार लुनिया हो या घनश्याम अग्रवाल हो, हर व्यक्ति में ये शक्तियां विद्यमान है। वो पहली शक्ति है ब्रह्मा शक्ति, विच इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ क्रिएशन। क्रिश्चियनिटी में उसे कहते हैं गॉड द फादर, और इस्लाम में भी यही 3 शक्तियां हैं, जैन में भी ये 3 शक्तियां हैं, हिंदू धर्म में भी यही 3 शक्तियां हैं। तो पहली जो एनर्जी है वो है विच इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ ब्रह्मा, विच इज क्रिएशन। कोई भी काम, कोई भी व्यवसाय आप करते हैं तो पहले उस चीज को क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। और एक आप मसाला डोसा भी खाते हैं ना, तो पहले मसाला डोसा बनता है, तो वो क्रिएट करने की एनर्जी को ही हम लोग ब्रह्मा एनर्जी कहते हैं। दूसरी एनर्जी होती है उसे मेंटेन करने की, जैसे आपने कहा पालनहर्ता, दैट इज कॉल्ड विष्णु एनर्जी, एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ लव। वो प्रेम की एनर्जी है, और उसका ये परिणाम होता है कि हम उसे कंज्यूम करते हैं और पूरे बॉडी में उसकी एनर्जी जाती है। जैसे डोसा बनने के बाद में उसे खाता है व्यक्ति, तो खाएगा तभी बॉडी में एनर्जी जाएगी और शरीर को तृप्ति मिलेगी और शरीर कार्य करने के अनुकूल हो जाएगा। और तीसरी जो एनर्जी है वो है शिवा एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ पावर या एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल। हमारे शरीर में जो भी चीजें अनवांटेड है, वो डोसा को खाने के बाद उसको एनर्जी में रूपांतरित करना और उससे फिर कार्य करना, वो शिवा एनर्जी है। और बाकी जैसे क्रिश्चियनिटी में गॉड द फादर, सोल, द सन कहते हैं, इस्लाम में भी यही 3 एनर्जीज है। तो सारे जो चीजें हैं, क्या चीज, सारी एनर्जीज ऐसे 3 भागों में डिवाइडेड है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पर क्या कहता, आपने जैसा कहा ब्रह्मा जी के कुछ डिसाइड है, और विष्णु जी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हर अवतार में जब भी
पृथ्वी पर आते हैं वो किसी न किसी की हेल्प करते हैं। उन्होंने जो भी महाभारत का युद्ध समझ लीजिए या रावण का वध समझ लीजिए, अपने लिए नहीं किया था, वो पूरे समाज के सामने एक प्रतीक दिखाना चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को अगर इस तरीके से ट्रीट करता है तो उसका अंत ऐसा होना चाहिए। उन्होंने जो लड़ाई की थी वो अपने पत्नी के लिए नहीं की थी, बिकॉज ही वांटेड टू शोकेस समथिंग एल्स टू द वर्ल्ड. That was the reason he did. So in all his avatars, he was doing something for the others so that people can learn something out of it. It was not for his own interest. सिर्फ अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं था. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं he is the God of heart. वो हृदय के गॉड है. तो हर वो व्यक्ति जिसका हृदय बहुत बड़ा है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो entitled हो जाता है रिसीव करने के लिए लक्ष्मी को. ओके तो अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं. मैं आप लोगों को, अभी सुबह का समय है, आप लोग सबको सांस लेना आता है? मैंने भी कैसा सवाल पूछ लिया, सांस लेना किसको नहीं आएगा? यह एक ऐसी क्रिया है जो हम लोग बचपन से लेके अगर सबसे अधिक बार अगर कोई हमने क्रिया की है तो वो है सांस लेने की क्रिया. चलिए हम लोग एक बार अपने एक हैंड को अपने पेट पे रखते हैं और आप लोग सब सांस लीजिए. ओके, इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए. सांस पेट पे नेवल पे रखिए और जस्ट एक्सपीरियंस कीजिए कि जब आप सांस ले रहे हैं तब आपका पेट बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है. और ये मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए. सांस लेने के बाद आपका पेट इन अंदर गया या आउट, इन और आउट? इन. ओके, कुछ लोगों का इन है और जवाब दीजिए, कुछ भी हो सकता है, इन आउट. ओके, राजकुमार का आउट है, सिद्धार्थ का इन है, आउट. किसी का आउट है, किसी का इन है. देखिए ये एक ऐसी क्रिया है जिसे हम बचपन से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा कर रहे हैं और इसमें भी कंफ्यूजन है. यूजुअली मैं क्लास में सेशन में पूछता हूं तो आधे लोग इन बोलते हैं, आधे लोग आउट बोलते हैं. ओके, इट इज अगेन अबाउट समथिंग अबाउट अवेयरनेस. मैं यहाँ पे प्राणायाम कराने नहीं आया हूँ. हम यहाँ से भी एक वेल्थ मैनेजमेंट का लेसन निकालेंगे और वो ये है कि देखिए गुब्बारे की तरह है. ओके, मैं एक ही हाथ यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे हाथ में फोन को पकड़ के रखा हूँ. समहाउ लैपटॉप में नहीं हुआ था वो चीज. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक गुब्बारे में जब हम लोग हवा डालते हैं तो वो गुब्बारा फूल जाता है. उसी तरीके से हमारे शरीर में अगर हवा जाएगी तो पेट फूलना चाहिए. तो अगर पेट बाहर निकल रहा है तो वो सही क्रिया है श्वास लेने की. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्थ इश्यूज जो हमारे जीवन में आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि हम लोग सही तरीके से इनहेल और एक्सहेल नहीं कर रहे हैं. अब इस चीज का वेल्थ मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है वो भी हम लोग समझेंगे. तो अगर आप एक बच्चे को देखें तो वो एक प्रॉपर तरीके से सांस लेता है. अब अपने लोग को क्या करना है, जब मैं आपको सांस लेने कहूंगा तो आप सांस लेंगे. कोशिश करिए जब आप सांस ले तो पेट फूले, और जब हम लोग, मैं कहूंगा सांस छोड़ दीजिए, तब आप लोग एक्सहेल करेंगे. ठीक है? ओके, लेट्स डू दैट. इनहेल, 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 इनहेल. अटक गए सब लोग. ओके, एक्सहेल, 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 एक्सहेल. अटक गए हम लोग सब. परफेक्ट. ऐसा क्यों हो रहा है? अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग अटक क्यों रहे हैं? Why did we get stuck? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग सिर्फ सांस लेते रहे? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग सिर्फ सांस छोड़ते रहे? लिमिट होता है हर चीज का. हाँ, स्पेस लिमिट, उसके बाद लिमिट नहीं आगे जाने का, इसीलिए. लिमिट होता है. यस, एक्चुअली इट इज अ साइकिल. यह एक साइकिल है. मैं एक मिनट एग्जिट कर रहा हूं. ये एक साइकिल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस साइकिल के बेसिस पे ही हम लोग इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं. तो हम लोग को क्या है ना, until and unless we exhale, we are not entitled to inhale. जब तक हम एक्सहेल नहीं करेंगे, सांसों को बाहर नहीं निकालेंगे, हम लेने के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं बन सकते हैं. ये एक छोटी सी क्रिया है जो कि इजीली हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं.
पर इसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग कंटिन्यूअसली इनहेल नहीं कर सकते। उसी तरीके से रुपया भी है, अगर हम लोग बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते रहे, हमारे बैंक में हमेशा रुपया आते रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, कंटिन्यूअसली उस बैंक में जो रुपया आ रहा है उसका यूज होना चाहिए, इट हैज टू बी यूज्ड प्रॉपर्ली। तो इफ द मनी, अगर थोड़ा सा थैंक यू, अगर हम लोग उस मनी का यूज प्रॉपर होगा, इफ इट इज यूज्ड फॉर अ पर्पस व्हिच इज अगेन लाइक लॉर्ड विष्णु जैसे यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी कंटिन्यूअसली यूज कैसे करना है। विष्णु कुमार जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, इट विल बी गुड। तो आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, इज माय वॉइस नॉट कमिंग? यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर सर। They all are getting. तो क्वेश्चन यही था कि हम लोग जब तक एक्सेल नहीं करेंगे, इनहेल के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे, उसी तरीके पास हमारा जो धन है, हमारे पास जो संपत्ति है, उस चीज को हम लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे या देंगे नहीं अच्छे काम के लिए, जिस तरीके से बिल गेट्स या बाकी सब लोग करते हैं, रतन टाटा करते हैं, तो हमारे पास वो इनफ्लो कंटिन्यूअसली वैसे नहीं आएगा। ओके, चलिए आइए मैं आपको थोड़ी बहुत हमारे वो कहानियां से शेयर करता हूं और फिर हम लोग उससे एक एक वेल्थ मैनेजमेंट के लेसन शुरू करेंगे। ओके, ये एक किताब है जो कि कल ही रिलीज हुई है, परसों निलॉय भी था उस दिन 11 तारीख को, एंड मैं इसमें से कुछ कहानियां जो मैंने लिखी है वो आपके संग शेयर करूंगा, और वो विक्रम बेताल की कहानियां हैं। एक बार निलॉय आप मेरे को एक बार फिर से होस्ट बना दीजिए या को होस्ट, सो दैट मैं शेयर कर पाऊं। राइट सर, या प्लीज मेक मी अ होस्ट, थैंक यू। सो अभी मैं आपके संग कुछ चीजें शेयर करूंगा। आप एक छोटा सा वीडियो है, आप लोग सब उसे देखिए, एंजॉय कीजिए। अब ये जो कहानियां हैं विक्रम बेताल की, थोड़ी रेलेवेंट है। रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि इन सारी की सारी कहानियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हमारे सामने आती है वो है प्रश्न, पजल्स। एक्चुअली हमारे जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ पजल्स है, कभी फैमिली, कभी ऑफिस, कभी कस्टमर्स, कभी माहौल, कभी सरकार, कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ इस तरीके के पजल्स देते रहते हैं, और हम लोग उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग उन चीजों को थोड़ा सा समझेंगे, और आपके सामने मैं if you can see the screen. Yes, so this was just a introduction, and अभी मैं आपके साथ में एक इसका पहला स्टोरी शेयर करूंगा। ओके,
जो कि एक कहानी है, और उस कहानी का फिर मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा और उसका जवाब देंगे, और हम लोग फिर वहां से आगे बात चालू रखेंगे, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। हम सब एंशिएंट इंडिया के टाइम में जा रहे हैं फिर से। एक्चुअली विक्रमादित्य एक ऐसे कैरेक्टर हैं, एक ऐसे पात्र हैं, एक ऐसे महान राजा हैं पूरे विश्व में, जिन्होंने, रादर अगर कहूंगा कि भारतवर्ष की जो सीमाएं हैं, ईरान, इराक और उससे आगे यूरोप तक चली गई थी उस दौरान, और इस तरफ में देखें तो मलेशिया से भी आगे, थाईलैंड से भी आगे, बहुत दूर बर्मा से भी आगे तक पूरा पूरा हमारा राष्ट्र था। इवन चाइना वाज आल्सो, मेजर पार्ट ऑफ चाइना वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट टाइम। अगर उससे के चक्रवर्ती महाराज, बहुत ही कम लोगों को वीर और चक्रवर्ती की जो उपाधि दी गई थी, एंड विक्रमादित्य इज वन ऑफ देम। सो अगर हम लोग एक्चुअली अपने जीवन में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और जिस तरीके से उन्होंने शासन किया, द वे ही यूज्ड टू थिंक, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक व्यक्ति का थॉट प्रोसेस, किस तरीके से वो सोचता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इस मेरे थ्रू कुछ समझना है या कनक जैन, नो, थिंक लाइक विक्रमादित्य। अगर केवल सच में आपको राजा बनना है, अगर 1% भी हम लोग राजा विक्रमादित्य की अगर तरीके से सोचें और समझें, उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिए, और हम लोग अपने जीवन में उसको अगर डाल सकें, आई थिंक हमारे जीवन में हमारे जो बिजनेस के सॉल्यूशंस हैं, फैमिली के सॉल्यूशंस हैं, हम लोगों को ऐसे उनके आंसर्स मिलेंगे, और हम लोग अपने जो प्रोस्पेरिटी लेवल को बहुत बहुत गुना बढ़ा पाएंगे। चलिए आइए हम लोग एक कहानी, ये एक्चुअली 25 कहानियां हैं, उसमें से पहली कहानी मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं, जो कि बेताल ने एक ही रात में 25 कहानियां सुनाई थी, ओके, विक्रमादित्य को, और विक्रमादित्य ने सारे आंसर्स एक एक करके सारे दे दिए थे। तो वो वाला इंसिडेंट बाद में, पहले चलिए एक कहानी देखते हैं। ये शायद हम लोगों की सबकी मनोस्थिति में या कहीं न कहीं स्थिति में जरूर होगी ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरुकुल में 3 राजकुमार पढ़ने आए, और गुरुजी की जो पुत्री है उसे देख के प्रभावित हो गए और उससे प्रेम में पड़ गए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि किससे उस कन्या का विवाह किया जाए, क्योंकि तीनों राजकुमार बहुत ही निपुण और बहुत ही संपन्न थे और बहुत ही अच्छे थे। अचानक से एक दिन एक सर्प ने उनकी पुत्री को डसा, और वो एक मृतक शरीर में बदल गई, वो उनका डेथ हो गया था। तीनों ही राजकुमारों ने निश्चय किया कि वो अब पूरे जीवन में कभी भी विवाह नहीं करेंगे, और पूरा जीवन उस गुरु की जो पुत्री थी उसकी याद में निकाल देंगे। पहले ने सारे वो उनके जो हड्डियों के टुकड़े थे उनको रख लिया और बोला, मैं इन्हें सुरक्षित करके रखूंगा, आई विल प्रोटेक्ट देम एंड आई विल बी विद देम। दूसरे ने ये सोचा कि वो जो है, जो अस्थियां हैं उसे रहेगा और वहीं पे रहेगा, और गुरु के पास में
अपना जीवन व्यतीत कर देगा। और तीसरे ने कहा कि मैं हिमालय की चोटी पर जाऊंगा, गुरु लोगों से मिलूंगा, मैंने साधना करूंगा और संजीवनी विद्या प्राप्त करूंगा, सो दैट मैं उसे वापस पुनर्जीवित कर सकूं। कई सालों की तपस्या के पश्चात वो तीनों मित्र वापस गुरुकुल में वहीं मिलते हैं, और पहला जो प्रिंस था वो सारी हड्डियों को लाइन से लगाता है, दूसरे ने उसके ऊपर एशेस डाली, और अब तीसरे के बाद ही यहाँ प्रश्न आ जाता है। तीनों ने उसे जिंदा तो कर दिया, वो राजकुमारी पुनः जीवित हो जाती है, लेकिन उनके जीवन आने के पश्चात क्या होता है, वो समस्या वैसी की वैसी, विवाह करे तो कौन करे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो पोल फॉर्म में थे, लेकिन हम लोग शायद उसे नहीं ला पाए हैं आप लोगों के सामने, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में अपने हिसाब से आंसर लिखिए कि एक्चुअली में वो तीनों में से किसके संग विवाह करेगी। देखिए, इसमें फाइनेंस का लेसन है और लाइफ का लेसन भी है, और ऐसी हर कहानियों में लेसन है। हमें आइडिया ये है कि हमें डिकोड करना है, और हमारे ग्रंथों को या जो भी कहानियां और जो भी परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द आ रही है, समझ लीजिए आज घर में पानी नहीं आ रहा है, होता है, या घर में हमने कुछ सोचा वैसा नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है और उससे हमें क्या सीख मिल रही है। अगर हम लोग वो समझ जाएं और वो डिकोड करना जाने, तो हमारे जीवन में समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएगी, और हम उससे उभर के बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में सामने आएंगे। तो यही क्वेश्चन है कि तीन स्थितियां हैं, तीन सूटर्स हैं यहाँ पे। वो जो गुरु पुत्री है वो धन की तरह है, वैभव की तरह है, लक्ष्मी की तरह है, वो किसको मिलेगी? तो यहाँ किसको मिलती है लक्ष्मी? दैट इज द क्वेश्चन। तो पहला है जिसने हड्डियों को संभाल के रखा, दूसरा है जिसने एशेज को संभाल के रखा, गुरुकुल के पास वहीं पे रह गया वो, और तीसरा है जिसने हिमालय पर्वत पे जाके बहुत दीर्घ तपस्या की और संजीवनी विद्या प्राप्त की, और कैसे एक मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है, तो उन्होंने जीवित किया। अब रानी वो कन्या को शादी कौन करेगा? सर जो हिमालय पे गए थे। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन आपको। या सर सबसे पहले ये जानना होगा कि लड़की को इच्छा है कि नहीं शादी करने का, ये आप बोले नहीं। लड़की भी इच्छा है, वो तीनों ही वो बहुत अच्छा मान रही है, और पिताजी ने भी सम्मति दे दी है, लेकिन वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसके संग करें विवाह। तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं, ज्ञान में राजकुमार भी हैं, हर तरीके से अच्छे हैं, निपुण है, तीनों अच्छे हैं, तीनों में कोई कमी नहीं है। पर अभी अपने को ये तीन चॉइसेस मिल गए हैं। जैसे शैतांक ने कहा कि जो उसने उसको जीवन दे दिया, हिमालय पर जाके तपस्या की, उससे शादी करें। बाकी लोगों का क्या करें? इसमें तो तीनों ही आदमी का इम्पोर्टेंट रोल दिख रहा है। एक हड्डी बचा के रखा, एक वो बचा के रखा, और एक लाइफ दे रहा है सर। लेकिन विवाह तो एक विवाह एक से ही होगा क्या? आप तीनों को नहीं दे सकते हैं। ये देखिए मैसेजेस हैं। हाँ ओके, राजकुमार लुनिया जी कह रहे हैं थर्ड वन। ओके, थर्ड वन कौन है? हिमालय वाले, ठीक है, बोलिए। फिर मैं आपको विक्रमादित्य के जवाब दूंगा। विक्रमादित्य की तरह सोचना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद में उसी विक्रमादित्य के आंसर से हम लोग फाइनेंस के जो लेसन्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, और हमारे जीवन में हम उसको उतार सकते हैं। मेरे हिसाब से तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों ही ने अपना काम किया है, और तीनों ही समझदार है, तीनों ने ही उसको संभाल के रखने की कोशिश की, और एक ने जीवन दिया। तो मेरे हिसाब से जीवन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिन्होंने जीवन दिया उनसे ही शादी करनी चाहिए। चलिए, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे जीवन दान की बात कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो कोई दूसरे व्यक्ति अदर देन द थर्ड पर्सन? हेलो, हाँ बोलिए। सर मेरे ख्याल से जिसने साधना की, उसको वापस तपस्या की, इसको जीवन देने के लिए, सेकंड वन? नहीं, वो थर्ड वन था। ओके, दैट्स द थर्ड वन, जिसने सर जीवन दिया, वही संजीवनी विद्या वाले। ओके, या चलिए अब लोग जैसे आप आज हम लोग को संजीवनी विद्या दे रहे हैं। हाँ, ये भी आपने कनेक्ट अच्छा किया। मैं बताता हूँ आपको
लेकिन संजीवनी विद्या मैं दे रहा हूं, लेकिन धन आप ही को अर्जित करना है, बिल्कुल काम आप ही को करना है। वो अभी चलिए अब हम लोग समझते हैं। अब अपने लोग महान राजा वीर विक्रमादित्य का जवाब समझते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? जिस व्यक्ति ने जीवन दान दिया उस कन्या को, जीवन दान देने वाले व्यक्ति पिता तुल्य होते हैं। दे आर द पीपल हु आर क्रिएटर्स लाइक ब्रह्मा जी, जो क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए उनका पिता तुल्य हो गए। तो पिता से तो कोई विवाह कर नहीं सकता, नहीं कर सकते। दूसरा तरह का, जो व्यक्ति प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हानि से बचाने के लिए, जिन्होंने हड्डियों को रोका, हड्डियां मतलब प्रोटेक्ट करती है हमें, उससे पूरा ढांचा क्रिएट हो जाता है, वो भाई तुल्य है, या रादर हम उसे कह सकते हैं उस कथा के हिसाब से शिव शक्ति है वो। ओके। और तीसरी है जो व्यक्ति जिसने एशेस बना के रखा, जो मेंटेन करके रखा, जो हमारे जो शरीर की जो एक्चुअल फिजिकल बॉडी है, ओके, जो पालन हरता है, जो पालन पूरा का पूरा हमारा पालन पोषण उसके ऊपर में डिपेंड करता है। सो और उसका कमिटमेंट और एक था कि वो वहीं पे रह गया और उसने सिर्फ एशेस के साथ ही पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करने का सोचा। तो एक्चुअली ही इज द विष्णु चरित्र, ओके, एंड लक्ष्मी शुड कम टू हिम। तो हिसाब से देखा जाए तो जो एक्चुअल जो विवाह है वो उस व्यक्ति के संग करेगी जिसने एशेस रखी। ये विक्रमादित्य का जवाब है। आप और हम लोग नहीं सोच पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से विक्रमादित्य सोचते थे। इसीलिए शायद उनके गणराज्य बहुत सारे थे विक्रमादित्य के समय में, सारे के सारे राजा, इवन चाइना, इराक और ईरान के जो राजा थे वो लोग भी आके, इट वाज लाइक अ सुप्रीम कोर्ट। सारे के सारे केसेस अगर कोई नहीं सॉल्व कर पाता था तो वो विक्रमादित्य सॉल्व करते थे। और इतने बलशाली और इतने शक्तिशाली और इतने निर्भयी व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के थे वो व्यक्ति। तो आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे फाइनेंस में इसका क्या कोरिलेशन है? जैसा कि मैंने पहले समझाया था, बताया आप लोगों को कि ये तीन एनर्जीज हैं और यहाँ पे ये तीनों एनर्जीज को देखना समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक्चुअली मैं चाहता था आप लोगों के संग पोल के थ्रू किया जाए। कोई बात नहीं, और कभी फ्यूचर में इस तरीके का मौका मिलेगा तो हम लोग और चीजें शेयर करेंगे और थोड़ा सा बेटर वे में। पर द आइडिया इज, इसके अंदर में हमारा फाइनेंस का लेसन क्या है? तो फाइनेंस का लेसन यही है कि देयर इज इनकम एक क्रिएट होती है। ओके, अब चलिए एक मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, इससे इसका जवाब आई एम श्योर आप लोग सब दे देंगे। एक होता है इनकम क्रिएट करने की क्रिया। समझ लीजिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें बिजनेस कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर उसे क्लाइंट के सामने लेके जा रहे हैं, तो वो है क्रिएटिविटी। दूसरा है उसे प्रोटेक्ट करने का क्रिया, कि हमने जो भी धन कमाया उसमें से कुछ हम लोग सेव करते हैं। जिस तरीके से हम लोग समझ लीजिए पीपीएफ में डाल दिया, एफडी कर लिया या इंश्योरेंस करा लिया या कुछ भी सेविंग करते हैं हम लोग, सिर्फ सेव करके रख लिया, उससे हम लोग कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रहे हैं। और तीसरी क्रिया है कि ये जो वेल्थ हमने कमाया, जो प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसे रीबैलेंस कर रहे हैं। किस समय किस जगह कहाँ पे उसे निवेश करना है या किस बिजनेस में डालना है, और उस चीजों को एक अच्छी सोच और एक अच्छी समझ के संग यूज करना, सो दैट वो बिजनेस अपना वेल्थ बढ़ सके। उसे कहते हैं हम लोग अगेन रीबैलेंसिंग। तो वो उस रीबैलेंस कैसे कर सके हम लोग, उस चीज को कैसे बढ़ा सकें, उसे वृद्धि कैसे कर सकें। देखिए जितने भी लोग हैं ना, क्रिएट तो आप एक बार करेंगे और प्रोटेक्ट भी आप उसे एक बार करेंगे, लेकिन तीसरी चीज है उसे रीबैलेंस करके उसे बढ़ाना, उसको और ज्यादा वृद्धि करना। तो ये अगर तीन ऑप्शंस हैं तो आप लोग किसमें कौन सा सिलेक्ट करेंगे? कौन सा ज्यादा जरूरी है वेल्थ को बढ़ाने के लिए? क्रिएट करना, प्रोटेक्ट करना, या उसे और रीबैलेंस करना, या फिर उसे और मैनेज करना? और मैनेज करना। मैनेज। तो अभी तो क्लूज मिल गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों एनर्जीज फिर से ये है, देखिए क्रिएटिविटी ब्रह्मा की एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज क्रिएट ही नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, तो आप आगे क्या कैसे करेंगे? और उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिसे फाइनली वेल्थ उनके पास बढ़ता है जो उसे क्रिएट रिक्रिएट करता रहे। जैसे कि बिल गेट्स है या वॉरेन बफेट है, वो लोग जो वेल्थ क्रिएट करने के बाद में जो वेल्थ है उसको भी कैसे यूज करना है, उसे भी कहाँ कहाँ लगाना है, कौन से बेस्ट जगह है, और जो गलत है वहां से वापस निकालना है, सही में वापस डालना है। तो ये चीजें अगर आप लोग मैनेज नहीं करेंगे या अपने नॉर्मल जीवन में भी या बिजनेस या वेल्थ मैनेजमेंट में भी, तो वो वेल्थ उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा। तो आवश्यकता सभी चीजों की है, पर इससे ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये तीसरी चीज और एक जरूरी है। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, सो आई थिंक हमारा काफी टाइम हो गया है और एक ही कहानी मैंने शेयर की है, बहुत सारी कहानियां हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली आप लोग किस तरीके से अपने वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए कई सारे तरीके होते हैं और एक गेम, देखिए मैं निलॉय जानता है और बाकी सब में क्या है ना, आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग गेम्स। मैं दो ही काम करता हूँ, एक है कहानियों के थ्रू शेयरिंग करना और दूसरा है गेम्स के थ्रू शेयर करना। तो मैंने एक गेम भी बहुत सारे बना रखे हैं और खेल खेल में हम लोग लीडरशिप के और फाइनेंस के, वेल्थ में हम लोग आज निवेश करें, कब ना निवेश करें, कब निकालें, उस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। सो कभी और मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर शेयर करेंगे आपके संग, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली रीबैलेंस एंड हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट। तो जाते जाते और एक सवाल पूछ लेता हूँ और उसके बाद में अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। हम लोग आज कुछ टेक्निकल डिटेल्स में नहीं गए हैं। आप सबसे अनुरोध करूंगा, इट्स ओनली एट Amazon, फ्लिपकार्ट, सभी जगह ये किताब मिल रही है, बिहेवियर फाइनेंस। आप लोग अगर उसे पढ़ना चाहें तो प्लीज जरूर पढ़ें। आई एम श्योर आपके घर में बच्चे भी इसे एंजॉय करेंगे, आप भी इसे एंजॉय करेंगे और आपके अग्रज जो घर में है वो भी इसे एंजॉय करेंगे। बहुत सारी पिक्चर्स के साथ मैंने इसको डिजाइन किया है और बनाया है। एक छोटी सी कहानी, एक बहुत साल पहले एक बच्चे जो 16 साल का था, उसे हायर स्टडीज के लिए जाना था और वो हायर स्टडीज के लिए उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता थी। तो वो एक देनदार के पास जाता है गांव में और बोलता है आप मुझे कुछ रुपया दे दीजिए। और वो रुपया लेने के लिए वो बोलता है ठीक है मैं लूंगा, लेकिन तुम्हें ब्याज की जो रकम है वो है हर 6 महीने में डबल करके देना होगा। आज मैं अगर तुम्हें 100 रुपया देता हूं तो 1 साल बाद 200 रुपया, और नहीं 6 महीने बाद 200 रुपया, 1 साल बाद 400 रुपया, 1.5 साल बाद 800 रुपया, इस तरीके से देना होगा। तो वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा रुपए तो मैं नहीं दे सकता। तो बोला नहीं यही रेट है हमारे गांव की। तो वो ऐसा बोलता है कि ठीक है, आप मेरे पास 1 रुपया है अभी, मैं आपको 1 रुपया देता हूँ और आप उसे 1 रुपया को ले जाइए और आप जब मैं आऊं तब मुझे वापस दे दीजिएगा इसी रेट के हिसाब से। तो वो 1 रुपया देकर चला जाता है। ठीक है, अब 14 साल बाद वो बच्चा वापस आता है पढ़ लिख के, वो 30 साल का हो गया है, संपन्न हो गया है। वो बोलता है वो 1 रुपया जो मेरा, अब आप मुझे वापस दे दीजिए। तो आप लोगों को यह अनुमान लगाना है कि वो 1 रुपया बढ़कर कितना हो जाता है उस समय 14 साल बाद। प्रश्न ये है, हर 6 महीने में रुपया डबल हो रहा है। ठीक है, तो 14 साल बाद क्या हो गया है वो, गेस कीजिए। मैं आपको ऑप्शंस दूं। पहला ऑप्शन है लेट्स से 1.25 लाख रुपया, दूसरा ऑप्शन है 1.25 करोड़ रुपया, तीसरा ऑप्शन है 12.5 करोड़ रुपया और चौथा ऑप्शन है 95 करोड़ और पांचवा ऑप्शन है 107 करोड़। चलिए इसी 5 में से एक आंसर है। 107 करोड़ सर। ओके, श्वेतांक ने कहा 107। और कोई? ये एक दुनिया का 8वां अजूबा है। इसे हम लोग कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक 107 करोड़ है सर। 107 आंसर आ रहा है। नहीं, मैंने कहा है 14 साल। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स 107 करोड़ गलत आंसर है। सर ये 15 साल का है सर, सॉरी 15। थैंक यू संतोष, 15 साल का है वो। हाँ, तो 14 साल में 95 करोड़ होगा ये। और बट अगेन 95 हो 107 हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि ये छोटी सी रकम 1 रुपया डबल होते होते देखिए 7 सालों में ये 1 रुपया कितना हुआ था मालूम? केवल 16,000 रुपया। 1 रुपया 7 साल में 16,000 हुआ। लेकिन 7 साल से अगर आप 14 साल का सफर देखें तो वो 95 करोड़ रुपए हो गए। तो जो मेजर पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो तभी लागू होता है जब गोल के नजदीक हम पहुंचते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों ने निवेश करना शुरू किया, वो कोई म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, इंश्योरेंस में भी हो सकता है, या एफडी में भी हो सकता है, या अपना कोई पीपीएफ में भी हो सकता है। लेकिन उसका जो सही पावर है एंड में आता है। समझ लीजिए एक बच्चे के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो लास्ट के कुछ साल हैं
एक्चुअल चमत्कार जो होता है, एक्चुअल रिटर्न जो होता है, उसी समय आता है। सो कई बार हमें थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना चाहिए और उस समय का वेट करना चाहिए, अपने सलाहकार के संग परस्पर जुड़े रहना चाहिए, सो दैट हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसीलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने सलाहकार से सलाह लें, निवेश करें, डिसिप्लिन रहें और लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करें और विष्णु चरित्र को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। सो विद दिस नोट्स आई एम डन फॉर द डे। वी कैन हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। आने वाले समय में और अपॉर्चुनिटीज देखेंगे जब मैं आपको और कहानियां सुना पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं वापस से होस्ट किसे बनाऊं? निलय सर, आशीष सरिया को। आशीष, यस आशीष। Yes, Ashish, over to you. Yes, Ashish, बोलिए। क्या निलय? I am done। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, otherwise we are done for the day. सर, इस निलय है सर। सेशन आप लोगों के लिए कुछ होगा, ऑल्दो बहुत ही सर निलय है सर। हेलो। हाँ जी। बहुत दिन बाद, मतलब बहुत अच्छा एक सेशन हुआ आज, काफी दिनों बाद। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, माय क्वेश्चन। हेलो जी सर, मैं सर, आपने जो कंपाउंडिंग के बारे में बताया, तो अभी जैसे हम लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, आपने कहा कि सर हम लोग उनसे कंसल्ट करें, तो अगर अपने को कंपाउंडिंग में पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे उस लड़के ने किया 14 साल के लिए, तकरीबन उन्हें 95 करोड़ मिला 1 रुपए का, तो इस तरह से हम लोग अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके कंपाउंड कर सकते हैं सर? नहीं, एक सही स्थान पे होना चाहिए। एसेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसेट एलोकेशन का सबसे पहला मूल ये है कि ये मैंने एक मेरी पहली किताब थी वॉलेटिलिटी गेम बोल के है, उसमें भी मेंशन किया है कि हम लोग 5 तरीके से अपने वेल्थ को डिवाइड करें। पहला 20% अपने ऊपर में, अपने बिजनेस में निवेश करें। आपको अपने ऊपर में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना है। दूसरा 20% जो है वो आप दूसरों के बिजनेस में यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तीसरा 20% जो है आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, घर, ऑफिस, ये सारी चीजों में निवेश करें। चौथा 20% जो है वो आप जो डेट होता है, डेट फंड मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस या म्यूचुअल फंड में भी जो डेट फंड्स हैं जिसमें आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी आप उसमें निवेश करें, सो दैट आप एक कुशन की तरह उसे यूज कर सकें। और पांचवा जो है वो आप 20% प्रॉब्ली यू कैन इन्वेस्ट इनटू प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड है, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी जरूरी है। और कभी ऐसा होता है कि 10 साल तक गोल्ड का प्राइस बढ़ा नहीं, लेकिन एक संग बढ़ा तो इतना बढ़ गया। तो आपके जो एसेट्स हैं ऐसे इस तरीके से अगर डिवाइडेड रहेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको, और ये कंटिन्यूसली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी एसेट क्लासेस में, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली रिटर्न जनरेट होगा और आपको फायदा हो जाएगा। सिंपल तरीके से अगर मैं कहना चाहूं तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, और बाकी रीबैलेंसिंग वगैरह वगैरह वो तो करना है अलग चीज से। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? सिद्धार्थ कुछ पूछ रहे थे। सिद्धार्थ जी, हेलो सिद्धार्थ जी। या एनीवन और भी कोई है तो हम लोग नेक्स्ट 5-7 मिनट और क्वेश्चंस कर सकते हैं, देन वी विल कंक्लूड। सुनील जी, आपका कुछ क्वेश्चंस? Good. It was a pleasure being with all of you with such a lovely audience of Siliguri. All of you, it seems you all are in business and entrepreneurs. I wish you prosperity. आप लोग सबको बहुत सक्सेस आपके बिजनेस में मिले। हाँ, विष्णु कुमार जी।
सर मेरा क्वेश्चन था कि अभी इंडिया की इकोनॉमी जो है बहुत नीचे जा रही है। हेलो। हाँ आप ठीक है। हेलो, बोल रहा हूँ सर, इंडिया की इकोनॉमिक जो है बहुत नीचे जा रही है, तो अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किसमें करना चाहिए? देखिए एकदम स्पेसिफिकली अभी का सिचुएशन अगर आप देखेंगे, ये एक ऑड सिचुएशन है। पूरा विश्व अभी इससे क्या कहते हैं ना कि प्रभावित है। तो ऐसा हम लोग किसी एक स्थिति को देखकर ऐसे, मैंने जो एसेट एलोकेशन कहा है, ये एसेट एलोकेशन आप हर समय करें, ऐसी स्थिति हो या कोई भी स्थिति हो। और ये विपरीत स्थितियां जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। और अभी अगर आप देखेंगे तो सब कुछ बहुत ही क्लियर नहीं दिख रहा है, पर जैसे ही चीजें क्लियर होगी, वो भले ही अभी 3 महीने में हो या 6 महीने में हो, आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर। तो ये एक वर्ष साल रहा है बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उसी में देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत नई चीजें क्रिएट भी की है। आज फार्मा सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो एज अ बिजनेसमैन आप तो एक ही बिजनेस में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपके हाथ में इतना पावर है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस बिजनेस में नहीं इसमें करूं। नॉर्मली क्या है, अगर आप एक समझ लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप सिर्फ इंजीनियर ही कर सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको लग रहा है जो भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है आप उसमें निवेश कर सकते हैं। आपको अगर लगता है फार्मा अच्छा है तो फार्मा में करिए, अगले साल लगता है नहीं फार्मा अच्छा नहीं है ये अच्छा है तो उसमें करिए। तो ये आपके एक इन्वेस्टर को ये बहुत बड़ा कहते हैं ना वरदान है, रादर एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो जिस क्षेत्र में चाहे निवेश कर सकता है, भले ही उस क्षेत्र में वो मैंने खुद इन्वॉल्व ना हो और खुद उसको बहुत एक्सपर्टीज भी नहीं हो। पर अगेन ये सब चीजों के साथ साथ में सलाहकार होना बहुत आवश्यक है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चीज पे थोड़ा ध्यान जरूर दें और आगे बढ़ें। एंड इट इज कनेक्शन मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है पर्सनल। सुनील जी अनम्यूट करिए अपने आप को एक बार फिर से। सुनील जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुनील जी को अनम्यूट कर दीजिए निलॉय, या सुनील जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ ठीक है, हाँ सुनील जी पूछिए। हाँ बोल रहा हूँ कि SIP जो हम करते हैं ये हम कुछ प्लान करके करते हैं कि भाई मेरे को 15 साल बाद में जरूरत पड़ेगी। सपोज 12वें साल में उसको अगर मेरे को जरूरत पड़ी इसको लेने की, तो 15 साल तक का वेट करना चाहिए या 12वें साल में ले लेना चाहिए? तो इससे कितना फर्क पड़ जाता है? नहीं फर्क एकदम ठीक कहा आपने। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है एंड में होता है। अब समझ लीजिए अपने लोग जो प्लान कर रहे हैं, जब प्लान बना रहे हैं, तो हमारा एक लक्ष्य डेट निर्धारित है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ठीक है हमने सोचा था कि बिटिया की शादी 25 साल की उम्र में करेंगे, लेकिन अच्छा वर मिल गया हमें 22 साल या 23 साल की उम्र में, तो हमने शायद पहले ही कर दी शादी। हो सकता है, या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है। तो अब वो जब चीज कर रहे हैं, तो जब हम लोग उस गोल के आसपास आने लगते हैं ना, तो हमारी जो SIP है उसे हम लोगों को गोल के आने से 1 साल पहले ही उसमें एक्शन ले लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली 13वें साल में जो आना चाहिए वो 13वें साल में ही आएगा, और 15वें में जो आएगा 15वें में भी आएगा। लेकिन हमें हमेशा इसीलिए गोल को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि अगर हमारा 15 साल में रिक्वायरमेंट है तो हम ऐसा करें कि हमें 13 साल में ही उतना पूरा प्राप्त हो जाए। तो अगर वो शुरू से ही वही प्लानिंग चलती रहेगी तो हम देखेंगे कि हम लोग 13th ईयर में ही मोरलेस वो अमाउंट अचीव कर जाएंगे। और जब गोल के पास आए तो हमें इक्विटी से निकाल कर उसे डेट के अंदर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या ऐसे फंड में जहां पे फ्लक्चुएशंस ना हो। क्योंकि एंड में अगर जिस साल हमें चाहिए, अगर उस साल मार्केट डाउन हुआ या अप हुआ तो ठीक है। तो इसीलिए उस अनिश्चितता से बचने के लिए ये आवश्यक है कि गोल से 1 साल 2 साल पहले ही हम डिसीजन लेके उसको समझ लीजिए पुराने वाले फंड में आपको 12% मिल रहा था, लेकिन अभी FD में या फिर डेट फंड में शायद 7% ही मिले, फिर भी आप उसी में डाल लीजिए, क्योंकि लास्ट में रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और आप जैसे जैसे गोल के पास आते जाएं आपको ये एसेट एलोकेशन भी कर लेना चाहिए।
I have a question, Kanik ji. प्लान जरूर बनाएं, प्लान बनाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। लक्ष्य होना चाहिए, जैसा कि विक्रमादित्य ने भी कहा। अगर आपने गोल कर लिया है, विजुअलाइज कर लिया है, ये गोल है। मेरी दूसरी कहानी वही थी विजुअलाइजेशन के ऊपर में, पर और कभी मौका देखेंगे। यस मैम। तो पूरी धार्मिक बात कर दी। हाँ जी, विक्रमादित्य ने सर पूरी धार्मिक बात कर दी। सर विक्रमादित्य नो डाउट वो मतलब देव स्वरूप ही थे उस जमाने में। वो देखा जाए तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन थे लॉर्ड इंद्र के। और बहुत सिद्धियां प्राप्त थी उन्हें। 9 रत्न जो थे अकबर के दरबार में नहीं, अकबर के दरबार ने तो बाद में शुरू किया, उनसे पहले महान विक्रमादित्य के 9 रत्न थे और उसमें कालिदास जी एक थे। तो 9 रत्नों का जो कंसेप्ट है विक्रमादित्य का है। और 32 पुतलियां, 32 जो गुण हैं वो उनके पास थे। मतलब इट इज अ फेमस हिस्टोरिक। जब भी समय मिले बच्चों के संग बैठ के थोड़ा बहुत देखिए, आनंद के साथ साथ बहुत ज्ञान वृद्धि होगी, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। ये तो है सर। ठीक है, वेलकम। सो वी कैन कंक्लूड ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। सर फोन भी ले लिया जाएगा। There was one question. There was a question, sir. Okay. Hello. Yeah, Kalini ma'am. Yeah. 1 + 5. There is a question, I think. Yeah. Hello, Kanik sir. Actually, wanted to know, like, if suppose if somebody knows that their forte is being a creator, and or maybe a protector, but is not very good in maintenance, then what should the person do in terms of business? He should learn. And also he should consult an expert. Okay. And learning के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। भले ही आप एक्सपर्ट नहीं हो उसमें, लेकिन there are lot of books, lot of sessions. Try to take out some time. Okay. A part of it. और ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो सीखना चाहें और हम लोग नहीं सीख पाए, and we cannot learn. And okay, and you can also hire an expert. अगर हमें दांत में दर्द होता है हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अगर घर में प्लम्बर की आवश्यकता है, नल खराब हुआ है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं। उसी प्रकार देयर आर एक्सपर्ट्स, ट्राई टू बी विद देम और उनके साथ में रहेंगे, सलाह मशवरा करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली नॉलेज भी प्राप्त होगा और हमारा काम भी आगे बढ़ते रहेगा। तो अगर, और मैं कहूंगा भी नहीं, अगर आप डेंटिस्ट नहीं है तो आप दांत को निकालने का कोशिश करें या दांत में रूट कनाल करें, ऑब्वियसली सही भी नहीं है। Yes, और आप अगर you are not an expert, you should not even do, but you keep learning. And please, and also consult somebody who is an expert. Okay, thank you. With this, we are done, I think. Thank Sir, you. one more question. Yeah. One more question. You have a question. Yeah, Sir, regarding compounding, सर जैसा कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, तो क्या हम SIP को मान सकते हैं कि सर ये अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए शायद हम लोगों के लिए ये 8वां अजूबा बिजनेसमैन एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोग के लिए साबित हो? नहीं, नॉट ओनली SIP, आपने अगर कहीं पे भी निवेश कर दिया है और वो कंपाउंड हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप SIP क्या, आप अगर आप FD या PPF भी कर रहे हैं वो भी कंपाउंडिंग हो रहा है ना। आज PPF भी तो 8% के हिसाब से हो रहा है। मे बी म्यूचुअल फंड SIP में आपको 12% मिल जाए, या समझ लीजिए कोई एक स्टॉक में भी SIP हो सकती है। आप जैसे करना चाहें, आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए या आपके सलाहकार आपके साथ होना चाहिए। आई थिंक इट कैन ऐड रियली अ लॉट ऑफ वैल्यू। एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि बस मुझे इस गोल के लिए इतना रुपया हर महीने करना है और मैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से कर रहा हूँ। हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट मैंने जैसा कि मैंने कहा 5 भागों में बांट कर दिया। एक FD भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। और SIP बहुत अच्छा है। मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट्स और हमारे फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स भी हम लोग SIP के थ्रू करते हैं। जैसे हम लोग नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो अगर हमें SIP करना है तो एक मिनिमम क्या अमाउंट से हम लोग को स्टार्टिंग करना चाहिए, और एक जनरली नॉट मिनिमम, एक स्टैंडर्ड अमाउंट क्या होना चाहिए जो हमारे गोल्स को, जैसे कि रिटायरमेंट गोल्स हुए, फ्यूचर। यहाँ पे देखिए एक सलाहकार की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले एक फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे। फाइनेंशियल प्लान जब बना लेंगे, हमें लगेगा कि रिटायरमेंट के लिए इतना रुपया चाहिए,
बच्चे के स्टडी के लिए इतना चाहिए, इस कार्य के लिए गोल आधारित हो गए और इतने रुपए हो गए। अब उसके लिए हमें कितना रुपया करना है निवेश, वो अलग आ जाएगा। अगर आप लोग पीपीएफ में डालेंगे तो उसके लिए इतना रुपया आया। अब समझ लीजिए एक पर्टिकुलर गोल के लिए आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। अब वो 1 करोड़ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, समझ लीजिए हमें 10,000 रुपया महीने इन्वेस्ट करना है, तो वो हम एक एसआईपी में कर रहे हैं। और अगर हमें वो 1 करोड़ रुपया पीपीएफ से चाहिए तो हम 10,000 की जगह हमें शायद 18,000 रुपया देने होंगे, तब हम वो पीपीएफ से वो प्राप्त कर पाएंगे। तो उसी तरीके से, और गोल्ड में अगर चाहिए तो गोल्ड में हम कितना डालेंगे सो दैट वो 1 करोड़ रुपया उस समय प्राप्त हो जाए। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से आप निवेश कर सकते हैं और आप अपने मन चाहे अमाउंट की ओर पहुंच सकते हैं। प्लान बनाना और फिर उस पर वर्क करना। जी श्योर सर, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सवाल मेरा सर, एक सवाल मेरा। आपका भी सवाल है, बोलिए। हाँ सर कनक सर, या कनक सर, नीला या सर, जैसे मेरे को 20 साल के बाद 10 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, तो मैं आज तो इन्वेस्टमेंट का, हाँ सिंपल है सर, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स खरीद के उसे यूज करें। नहीं सर, नहीं सर, मैंने ऐसे बोला जैसे आपने अभी बोला ना, आपको एक कैलकुलेशन करनी है, रिटायरमेंट में आपको 1 करोड़ चाहिए चाहे 2 करोड़। सर आज का वैल्यू से तो मेरे को 1 करोड़ चाहिए, क्योंकि आज आलू 40 रुपए केजी है। लेकिन 10 साल के बाद सर आलू हो सकता है 400 रुपए किलो हो, हो सकता है 200 रुपए किलो हो। तो मेरा प्लानिंग तो मिस प्लानिंग हो जाएगा ना। मैं 10 साल का जीने का एक सोच रखा कि अमाउंट मेरा अभी 10,000 रुपए पर मंथ खर्च है। मेरे को 1 साल में 1.25 लाख रुपए खर्चा, 10 साल जीऊंगा, मेरे को 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं यही प्लानिंग लेके 50 to 60 एज के हिसाब से मैं इतना जी लूंगा। हो सकता है 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ हो जाए। लेकिन उस टाइम में तो सर ये 40 रुपए वाला आलू 400 रुपए हो जाएगा। हो सकता है 10 रुपए रिक्शा किराए का 100 रुपए हो जाए, 20 रुपए का कोई सामान 200 रुपए हो जाए। उसको कैसे उसको मैं करूंगा? बहुत अच्छा प्रश्न है मुकेश जी आपका। आज समझ लीजिए रिटायर होने के लिए आप अगर समझ लीजिए आपका आज 25,000 रुपया महीना खर्चा है, तो आज अगर 50 लाख रुपया है आपके पास तो आप रिटायर कर सकते हो। लेकिन अब रिटायर अगर आप 20 साल बाद होते हो तो आज का 50 लाख रुपया नहीं होगा, शायद 1.25 करोड़ रुपए होंगे। अब वो 1.25 करोड़ प्राप्त करने के लिए आपको कितना रुपया निवेश करना है वो आपको कैलकुलेशन करनी है। और वो आई थिंक आप सलाहकार जो हैं, आपके जो कोच हैं या एडवाइजर्स हैं, उनके संग कनेक्ट करके, इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले ये रूपरेखा बनाएं। कोई बहुत लंबा टफ काम नहीं है, लेकिन जैसे ये रूपरेखा बन जाएगी कि आज इतना रुपया है, फ्यूचर में कितना लगेगा और उस फ्यूचर के रुपए के लिए हमें क्या करना है, ये चीजें जैसे ही आपके सामने एक मानचित्र की तरह आपके सम्मुख होगी, आप देखिएगा चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा निलॉय से कि आप सभी से मिलें और एटलीस्ट एक प्लान उनको बनाएं और उनके संग थोड़ा सा संपर्क रखें। आई थिंक सबके लिए ये बहुत अच्छा होगा और आज का दिन बहुत अच्छा है और हम सब वी कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, ये सब कोई बताते नहीं है या? हाँ, ये जो है ना प्लान कोई बताते नहीं है, खाली बोलते हैं इंश्योरेंस कर लो। कितने का भाई? 10 लाख का कर लेना, मरेगा तो 10 लाख मिल जाएगा। ये नहीं बोलता है कि 10 लाख मरेगा तो साला 10 साल के बाद मरेगा। उस टाइम में तो 10 लाख तुम्हारा वो मतलब क्या बोलता है, काम काज जो होता है उसमें भी नहीं लगेगा, उसमें भी 20 लाख खर्च होगा। मुकेश जी बहुत अच्छा है, आप उसी तरीके से प्रेशर मार के अपने एडवाइजर से लीजिए। और दूसरी बात मैंने आपने जो कंपाउंडिंग जो बोला ना, जो आपने लास्ट बोला, मैंने भी एक बंदे को ऐसे ही बोला कि तुम 1 रुपए आज दो, पर डे डबल दो मेरे को 30 दिन तक, मैं तुमको 100 करोड़ रुपया दूंगा। लेकिन पर डे 1 रुपया आज देना पड़ेगा, कल 2 रुपया, परसों 4, तरसों 8, 16, 32 ऐसे करके। तो वो जो आपने कैलकुलेशन बोला वो 15-16 दिन तक तो ठीक है, उसके बाद तो उसका सब लोटिया गोल हो जाए। सब मैंने ठीक है, ये है। और प्लीज प्लान बनाएं। प्लान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भले ही वो छोटी सी चीज लगती है, एक पेज पे लगती है, पर वो चीज इतनी आवश्यक है हमारे जीवन में जिससे हमारे पूरे जीवन का मानचित्र चेंज हो सकता है। और आप बहुत ही एक्साइटेड हैं मुकेश जी, आप बहुत सही सोच रहे हैं और इस तरीके से आप सोच के अगर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप इस तरीके से सोचते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। वेलकम। थैंक यू सर।
Yes, sir. Yes, sir. Sir, thank you for being the session, being here. और बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर, सबके लिए बहुत ही यूजफुल है. मैं आई विल रिकमेंड एवरीवन टू बाय दिस बुक. द डे फॉर यस्टरडे सर हैज रिलीज्ड, जो आज का भी टॉपिक था, बिहेव योर फिनांस. तो वो पढ़ने से हम लोग को बहुत ही नॉलेज बढ़ेगा. तो फ्यूचर में हम लोग को क्या करना है, कैसे हम लोग को निवेश करना है, क्या करना है, सबको ही नॉलेज शेयरिंग होगा. और जो हम लोग बहुत आभारी है कि सर आज है हमारे साथ है. जो ये प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा रहा. और हम आशा करते हैं कि इन फ्यूचर में भी हम ऐसा प्रोग्राम करें, तो वहाँ पे मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट विल बी देयर एंड मोर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विल बी देयर सर. So thank you sir, thank you Kanik sir to being here, and we all are very happy for that, happy to मतलब शेयर करने के लिए कि हम लोग सब कोई बहुत अच्छा लगा. और सिलीगुड़ी बिजनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन है सर, सिलीगुड़ी में हम लोग बहुत ही मतलब मिले जुले काम कर रहे हैं. हम यहाँ पे हर कोई बिजनेसमैन है, एक एक एजेंसी से जुड़ा हुआ है. कोई हार्डवेयर का है, कोई आपका गारमेंट्स का हो गया, कोई सॉफ्टवेयर का हो गया. तो ऑल पार्टिसिपेंट्स आर हियर एंड सबको बहुत अच्छा लगा सर. सो वेरी गुड, वेरी थैंक यू सर, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Thank you. We can end the meeting now. Yes sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you.